ایک ایسے پاکستانی سنائپر کے ہنگامہ خیز شب و روز جس کی مہارت اس کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ پیش خدمت ہے سنائپر کے نام سے ایک نئی سٹوری۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس دو شاخے پر بیٹھے مجھے 12 گھنٹے ہونے کو تھے۔ میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کو محدود حرکت دے کر اپنے اعضاء کو سن ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس سے زیادہ حرکت کرنے کی عیاشی میری قسمت پہ نہیں تھی، لیکن یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں تھا کہ مجھے اپنے فرض سے باز رکھ سکتا۔ دوران ٹریننگ میں 36 گھنٹے اس سے بھی محدود جگہ پر بیٹھ کر گزار چکا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 48 گھنٹے گزارنے پڑ گئے تھے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ٹریننگ اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہی غلطیاں سدھارنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت میں غلطی کرنے کا مطلب اپنی جان گنوانا ہوتا ہے۔ خاص کر ایک سنائپر کے لیے غلطی کا تصور ہی محال ہے۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے صرف ایک گولی ہوتی ہے۔ اگر وہ گولی ہدف کو نہ چھو سکے تو دردناک موت سنائپر کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ میرے پسندیدہ استاد کیپٹن راؤ تصور کا قول اس بارے میں اور بھی متشدد تھا۔ ان کے مطابق سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 2 گولیاں ہوتی ہیں۔ پہلی گولی ہدف کے لیے، اور اگر وہ خطا ہو جائے تو دوسری گولی اپنے لیے، کیونکہ دشمن کے ہاتھ آنے کا مطلب زندہ درگور ہونا ہوتا ہے۔ البتہ گولی کے نشانے پر لگنے کی صورت میں ایسی افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے کہ سنائپر کی طرف لوگوں کا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ یوں بھی سنائپر کا ہدف اہم شخصیات ہی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے برعکس ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ ایک بار ہمارا ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ اس کا آئینی ارادہ، بہترین کیموفلاج اور نشانہ بازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھی۔ گو کہ اصل ہدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، مگر اس کے 8-9 محافظ ہمارے سنائپر نے چن چن کر مار ڈالے تھے۔ مجبوراً دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی اور وہ مزید کمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی واپسی تک ہمارا ساتھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ در حقیقت ایک سنائپر کو نشانہ بازی میں مہارت کے ساتھ ذہنی طور پر بھی چاق و چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے، تاکہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکے۔ اس کے ساتھ اسے چھپنے کی جگہ کا چناؤ کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے راستوں کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے، تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں آسٹریا کی بنی SSG رائفل تھی، جسے سٹائر سنائپر رائفل بھی کہتے ہیں۔ گو آج اس سے کئی گنا زیادہ بہترین اور معیاری رائفلیں دستیاب ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی افادیت اچھی رائفلوں کی موجودگی میں کم ہو جائے۔ اس سے 800 گز تک کسی آدمی کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہر بار فائر کرنے کے بعد رائفل دوبارہ کاک کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت میں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں سے ہدف کا فاصلہ 700 گز بنتا تھا۔ سبز درخت کی مناسبت سے میں نے اپنے لباس کے اوپر سبز رنگ کا گلی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گلی سوٹ سنائپر کا وہ مخصوص لباس ہوتا ہے جو اسے علاقے کی مناسبت سے چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ صحرائی علاقے میں ریتلے رنگ کا گلی سوٹ جو خشک جھاڑیوں سے میل کھائے، بنجر اور خشک علاقوں میں مٹیالے رنگ کا گلی سوٹ، مکمل برفیلے علاقے میں سفید رنگ کا گلی سوٹ اور سرسبز علاقوں میں گہرے سبز رنگ کا گلی سوٹ سنائپر کو چھپنے میں مدد دیتا ہے۔ یوں بھی سنائپنگ میں چھپنے کی اہمیت اتنی ہی اہم ہے جتنی ہدف کو نشانہ بنانے کی، کیونکہ خود کو چھپا کر ہی ایک سنائپر ہدف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہی سنائپر نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کا گلی سوٹ ساتھ لے کر جائے گا۔ بعض اوقات اسے منصوبے کے مطابق چھپنے کی جگہ نظر نہیں آتی۔ ایسی حالت میں وہ وقتی طور پر گھاس پھوس اور درختوں کے پتوں یا اپنے جسم کو کیچڑ میں لت پت کر کے علاقے کی مناسبت سے اپنا کیموفلاج کر لیتا ہے۔ میں نے پشت پر بندھی پانی کی بوتل کے پلاسٹک پائپ کو منہ لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ تو گرمی سنائپر کے لیے ایک اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح پانی ختم ہونے کی صورت میں پیاس کی زیادتی بھی ایک مستقل عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ٹیلیسکوپ سائٹ میں جھانک کر میں
दायां बायां के इलाके को देखने लगा। अतराफ में दरख्त फैले हुए थे। मेरे हदफ ने दायां जानिब से नमूदार होना था, मगर मैं इसकी सिमत की दूर तक निगरानी नहीं कर सकता था। मैंने हदफ को निशाना बनाने के लिए मोड़ के करीब जगह को पसंद किया था। वहां से मोड़ तक का फासला करीबन 2 किलोमीटर बनता था। मैंने आंखें बंद करके एक लहजे के लिए 2 शाखे के साथ सर टिका दिया। हल्की सी गनूदगी का एहसास हुआ और मैं सर झटक कर नींद को भगाने लगा। ज़रा सी नींद भी मुझे तकमील मकसद से गाफिल कर सकती थी। ट्रेनिंग की इब्तिदाई में हमें जोड़ियों की सूरत में हर काम करना सिखाया गया था, क्योंकि स्नाइपर का जोड़ियों की सूरत काम करना निहायत ही मुफीद होता है। इस मिशन में मेरा साथी हवालदार सादिक था, मगर बदकिस्मती से सरहद पार करते हुए उसके पाँव में मोच आ गई थी और मुझे मजबूरन इसे यहाँ से चंद मील पीछे सरहद की जानिब एक महफूज मकाम पर छोड़ना पड़ गया था। वो मुझसे सीनियर था, बल्कि मेरा उस्ताद भी था, और इस मिशन की तकमील की असल जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। पाँव में मोच आने के बाद वो वापसी के हक में था, मगर मैं अकेला जाने पर बजिद हुआ कि मेरा पहला मिशन था और पहली बार ही मुंह उठा के वापस हो जाने में मुझे सबकी महसूस हो रही थी। उम्मीद थी मेरी वापसी तक उसने चलने के काबिल हो जाना था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। घड़ी की सुइयां 6:30 का हिंसा अबूर कर रही थी। मैं सुबह 5 बजे से पहले दरख्त पर सवार हुआ था। इस वक्त सूरज गरूब होने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। यकीनन मेरे हदफ की आमद अगली सुबह तक के लिए मुलतवी हो गई थी कि इस इलाके में रात की हरकत ना होने के बराबर थी। मैंने आखिरी बार दायां बायां देखा और हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने लगा। मजीद चंद मिनट में मैंने अपने मुख्तलिफ अज़ा को हरकत देकर सुस्ती को भगाया और फिर स्मॉल पैक से भुने हुए चने निकाल कर खाने लगा। चने खाकर मैंने पानी पीने के लिए वाटर पाइप को मुंह लगाया तो 2 घूंट से ज़्यादा पानी ना मिल सका। मैं आते वक्त एक चश्मा ताड़ आया था, मगर वहाँ तक जाने के लिए मुझे अंधेरा होने का इंतज़ार करना था। दुश्मन का इलाका था। मेरी नक्लो हरकत किसी की निगाह में आने का मतलब मिशन से हाथ धो बैठना था। अंधेरा होते ही मैं दरख्त से नीचे उतर आया। स्मॉल पैक से अमेरिकन नाइट विजन साइट निकालकर उसके साथ लगे तस्मों की मदद से साइट आंखों पर बांध ली। साइट ऑन करते ही उसका अंदरूनी पैटर्न रोशन हुआ और मुझे हर तरफ हल्का सब्ज दिखाई देने लगा। अंधेरी रात में वो साइट मुझे 12-13 तारीख के चांद के बकदर इर्द गिर्द का इलाका रोशन दिखा रही थी। राइफल कंधे से लटकाकर मैंने पिस्टल हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि स्नाइपर राइफल से तेजी से फायर करना मुमकिन नहीं होता। हर स्नाइपर अपने साथ स्नाइपर राइफल के अलावा कोई अच्छी साख का पिस्टल जरूर रखता है, ताकि बवक्त ज़रूरत उसे काम में ला सके। पिस्टल की नाल पर साइलेंसर फिट था। 30 राउंड की लंबी मैगजीन लगाकर ग्लॉक 19 किसी भी तरह क्लाशनकोव से कम मुफीद नहीं था। एक स्नाइपर को स्नाइपर राइफल के साथ पिस्तौल के इस्तेमाल में भी महारत हासिल करना ज़रूरी होता है, और बिलाशुबा मैं पिस्तौल के इस्तेमाल में खसूसी महारत रखता था। चश्मे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले मैंने फितरी तकाजा पूरा किया और फिर चश्मे की तरफ बढ़ गया। वो पहाड़ी इलाका था। जुलाई के महीने में भी मौसम अच्छा खासा सर्द था। दिन की रोशनी में दूर नजर आने वाली ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेदी देखी जा सकती थी। वो दिन को सूरज की तमाज़त माहौल को काफ़ी हद तक गर्मा देती थी, मगर यह हिद्दत भी खुशगवार असर लिए हुए होती थी। चश्मा मचान से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। इस करीबन 1.5 किलोमीटर में 25 से 30 गज की कमी बेशी हो सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक स्नाइपर के लिए फासलों का अंदाज़ा लगाना बेकार का मशगला नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, जो बाद को अमली ज़िंदगी में काम आता है। एतराफ़ का जायज़ा लेते हुए मैं नॉर्मल रफ्तार से चश्मे की तरफ बढ़ता गया। जंगली जानवरों से मुठभेड़ होने का ख़तरा ना होने के बराबर था। गो इस इलाके में कभी कभार रीछ और शेर नज़र आ जाते थे, मगर ऐसा वाक़या कम ही पेश आता है। अलबत्ता वहाँ लोमड़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। दुश्मन के गश्ती दस्ते भी चूँकि पहले से मौजूद रस्तों पर गश्त करते रहते थे, इसलिए इनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र था। लेकिन किसी भी किस्म की अनहोनी, अचानक सर पर पड़ने वाली आफताब का गुमान, इसके साथ रात का अंधेरा, अनजान इलाका, दुश्मन की सरजमीन और तकमील मकसद से पहले किसी हादसे का ख़तरा और इस जैसे कई एक एहसासात बहरहाल मेरे दिल में ज़रूर जागुज़ी थे। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। ये हवा सर्दी बढ़ाने का सबब बनती है, क्योंकि ये बर्फीली चोटियों से घूम फिर कर यहाँ तक पहुँचती है। चश्मे के करीब पहुंचकर मैं बैठ गया और हाथों का ओक बनाकर पानी पीने लगा। निहायत ठंडा और शीरी पानी था। खूब सैर होने के बाद मैंने स्मॉल पैक से प्लास्टिक की बोतल निकाली और भरने लगा। बोतल भरकर मैंने स्मॉल पैक में रखी और वापस चल पड़ा। लेकिन वापस चलने से पहले मैंने कुतबी सितारे को देखकर सिमत का तयन ज़रूरी समझा था। गो के मेरे पास कंपास भी मौजूद था, लेकिन आसमान साफ होने की वजह से इसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई थी। एक स्नाइपर के ज़रूरी सामान में कंपास, दूरबीन,
नाइट विजन साइट, नक्शा, चाकू, रस्सी, विंड मीटर, टॉर्च, लाइटर या माचिस और वायर कटर वगैरह की मौजूदगी निहायत ज़रूरी है। वापस जाते हुए मेरे जहन में अपने सीनियर की हिदायत उजागर हुई जो उसने मिशन पर रवाना होने से पहले हमें दी थी। 28 या 29 जुलाई को इस इलाके में ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद मुतवक्के है। उसने दीवार पर टंगे बड़े से नक्शे पर सब्ज रंग के लेज़र पॉइंटर की रोशनी से एक मखसूस जगह की निशानदेही की, और ये वही बदबख्त है जिसके हुक्म से इस सरहदी पट्टी पर आए रोज गोलाबारी जारी रहती है। इसने मखसूस रास्ते की निशानदेही के साथ नक्शे के साथ लटकी एक बड़ी सी तस्वीर पर लेज़र पॉइंटर की रोशनी डाली। वो तस्वीर ब्रिगेडियर प्रकाश की थी। हमारे सीनियर की गुफ्तगू जारी रही। सरहद के सुकून को तयोबाला कर दिया है खबीस ने। गो इस बेमकसद गोलाबारी से सरहदी इलाके के मजलूम शहरी ही बेसुकून रहते हैं, बल्कि कई एक के जख्मी और जाँ बहक होने की खबरें भी तवातर से मिलती रहती हैं। इसलिए ऐसे शरपसंद जो अमन मुआहदे को खातर में लाए बगैर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें, जिंदा रहने का हक खो देते हैं। ये ऐसा खबीस शख्स है कि इसकी अपनी सिपाह इससे सख्त नाला हैं। इसे यहाँ तैनात हुए 4 माह होने को हैं और इन 4 माह में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इसके हुक्म से दुश्मन की तोपें खामोश हुई हों। अब हमें बावसूख ज़राए से खबर मिली है कि ये अगले मोर्चों के मुआयने के लिए इन 2 तारीखों में आने वाला है। यकीनन इस बदबख्त ने कोई नई शरारत सोचनी होगी। हम इसकी शरारतों से खौफज़दा नहीं, लेकिन शरारत करने वाले का सदेबाब अगर मुमकिन हो तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और सादिक, आप सीनियर हैं, इससे पहले भी कई बार सरहद पार जाकर कामयाबी से हम किनार हो चुके हैं, जबकि ज़ीशान हैदर पहली मर्तबा किसी मिशन पर जा रहा है। इसे अच्छी तरह समझाना ताकि आइंदा ये भी आपकी तरह एक अच्छे स्नाइपर के तौर पर सामने आ सके। यूँ भी ये आपका होनहार शागिर्द है और ज़ीशान, आप खुशकिस्मत हैं कि पहला मिशन अपने उस्ताद की ज़ेरे निगरानी पूरा करोगे। अब वो सीनियर तजर्बाकार स्नाइपर और मेरा उस्ताद जिसके सर पर तकमील मिशन का बोझ था, यहाँ से करीबन 500 किलोमीटर दूर बेबसी की हालत में पड़ा था और मिशन की सारी जिम्मेदारी एक नौआमूद स्नाइपर यानी मुझ पर आन पड़ी थी। गो के जख्मी होने के बाद उस्ताद सादिक ने मिशन को अधूरा छोड़कर वापस जाने का मशवरा दिया था, मगर मेरे इसरार पर उसे ज़रूरी हिदायत और नेक ख्वाहिशात के साथ मुझे रुखसत करना पड़ा था। वो 2 घंटे तक मुझे समझाता रहा था और हकीकी बात है, मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग से उस्ताद सादिक की आखिरी हिदायत ज़्यादा मौसर लगी थी, क्योंकि ये हिदायत अमली ज़िंदगी की ऐन इब्तदा थी। दरख्त के करीब पहुंचकर मैं आगे निकलता चला गया। जिस जगह हदफ को निशाना बनाना था वो एक ऐसी जगह थी जहां कुदरती तौर पर 1-2 पत्थर उभरे हुए थे। इस तरह इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए एक कुदरती स्पीड ब्रेकर सा बन गया था। इस जगह से 50-60 गज मुखालिफ सिमत में एक जगह मैंने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED 2 पत्थरों के दरमियान ज़मीन में इस तरह दबाई हुई थी कि दरख्त पर बैठकर इसे निशाना बना सकूं, और इसका मकसद हदफ को निशाना बनाने के बाद ब्रिगेडियर प्रकाश के मुहावजों को वक्ती तौर पर खौफजदा करना और उनकी तवज्जो किसी और जानिब फेरना था। और हकीकत में हदफ को निशाना बनाने के बाद इस IED को हिट करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर था। और एक स्नाइपर की असल पहचान यही होती है कि उसे हमेशा अपने निशाने पर एतमाद होता है। आज 28 जुलाई का दिन गुजर गया था और कल ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद यकीनी थी। मैंने देखभाल और खूब सोच समझकर दुश्मन की आमद की सिमत से बायां जानिब एक दरख्त पर आर्जी मचान बनाई थी। बायां सिमत जगह चुनने में एक तो ये फ़ायदा था कि ब्रिगेडियर प्रकाश ने ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा होना था, इसलिए लामहला उसने बायां साइड पर होना था। दूसरा, मुझे फ़रार के लिए भी यही सिमत मतलूब थी। इस जानिब दरख्त भी कुछ ज़्यादा थे। IED के ठीक लगा होने का इत्मीनान करके मैं वापस दरख्त के पास आया और मचान में लेट कर सो गया। खुद को रस्से से बांधना मुझे नहीं भूला था, वरना दूसरी सूरत में नीचे गिरकर मैं जख्मी या हलाक हो सकता था। सारे दिन की थकन और बेआरामी के बावजूद मैं रात को अच्छी तरह नहीं सो सका था। बार बार आंख खुल जाती। एक बार तो सीटी की आवाज़ सुनकर मैं बेसाख्ता चौंक कर उठ बैठा और दोबारा सीटी बजने पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, क्योंकि गनूदगी भागते ही मैंने आवाज़ को पहचान लिया था। ये इस इलाके में मौजूद एक बड़े साइज़ के चूहे की आवाज़ थी, जो जिसामत में बिल्ली से भी बड़ा होता है। इसका मकामी नाम तरशोन है। अपने बिल के दहाने पर खड़ा होकर जब ये ज़ोरदार आवाज़ निकालता है तो बिल्कुल यूँ महसूस होता है जैसे सीटी बजाई जा रही हो।
सुबह तड़के उठकर मैं ज़रूरियात फितरत से हम कलाम हुआ और फिर दरख्त पर चढ़कर ऊँघने लगा। दुश्मन की आमद बाद अज़ दोपहर मुतवक्के थी, क्योंकि इस रैंक के ऑफिसर का सुबह तड़के जागना एक मजाक ही मालूम होता है। जागने के बाद बजरिया हेलीकॉप्टर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुंचना और फिर वहां से अगले मोर्चों के मुआयने के लिए बाई रोड आने में इतनी देर तो बहरहाल हो ही जानी थी, मगर इसके बावजूद बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाना मुनासिब नहीं था। धूप के तेज होते ही मैं संभल कर बैठ गया। वक्फे वक्फे से मैं दूरबीन के जरिए इर्द गिर्द के इलाके का जायजा भी ले लेता था। जो ही सूरज ने निस्फ सफ़र तय किया, मतलूबा सिम से एक जीप नमूदार हुई और मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। जीप का नज़ारा बिल्कुल करीब होता गया। फ्रंट सीट पर बैठे हुए दोनों जवानों की शक्ल ब्रिगेडियर प्रकाश से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। थोड़ा मज़ीद नज़दीक आने पर उनके रैंक भी नज़र आने लगे। ड्राइवर के साथ दरमियानी रैंक का एक आदमी बैठा था, जबकि अकबी जानिब 3 आदमी कलाशनकोफों से लैस खड़े हुए थे। जीप सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। यकीनन ये ब्रिगेडियर प्रकाश के आने से पहले रास्ते की देखभाल कर रहे थे। मेरे तने हुए असाब ढीले पड़ गए थे। वो इसी सुस्त रफ्तारी से इस कच्चे रास्ते पर से गुजरते चले गए। मुझे यकीन था कि इंतजार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं। अपने कैमोफ्लाज का बगौर जायजा लेकर मैं ब्रिगेडियर प्रकाश के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। घुटनों पर रखी राइफल मैंने हाथों में थाम ली थी। टेलीस्कोप साइड के सामने और अकबी तरफ के ग्लास कवर उतार कर मैंने मोड़ की सिम शिस्त बांध ली। साइड के अंदर 3 गहरी स्याह लकीरें नजर आ रही थी। 2 लकीरें दायां बायां से दरमियान की तरफ आ रही थी और एक कदरे मोटी लकीर थी जो नीचे से ऊपर की जानिब उठकर जा रही थी। ये तीसरी लकीर नीचे से मोटी और इसका ऊपरी सिरा बिल्कुल बारीक था। तीनों लकीरें दरमियान से जरा पहले खत्म हो जाती थीं। अगर नीचे वाली लकीर को ऊपर की तरफ मुकम्मल उठा दिया जाता तो साइड के अंदर बड़ा सा जमा का निशान बन जाता था। इसी अमूदी लकीर का ऊपरी सिरा मेरा शस्ती नुक्ता था। दुश्मन की गश्ती जीप को गुजरे घंटा गुजरा होगा कि एकदम मोड़ से 3 गाड़ियां नमूदार हुईं। 2 खुली छत की जीपें और दरमियान में छत वाली टोयोटा जीप थी। दरमियानी रफ्तार से चलते हुए तीनों गाड़ियों ने किलोमीटर भर का फासला तय किया था कि अचानक मुझे टोयोटा जीप के शीशों का काला रंग नजर आया। मेरा दिल बैठने लगा। हदफ को मैंने साइड से निशाना बनाना था और काले शीशों की वजह से हदफ का नजर आना मुमकिन नहीं था। इसका एक हल तो यही था कि मैं सामने से जीप को निशाना बनाता, मगर ऐसी सूरत में हदफ का फासला मुझसे बढ़ जाता, जिसके बायस दुरुस्त निशाना लगाना मुमकिन नहीं था। इस राइफल से 800 मीटर तक ही दुरुस्त निशाना लगाया जा सकता था। अगर 800 मीटर से फासला बढ़ जाता तो फिर निशाने की दुरुस्ती यकीनी नहीं थी। मेरे गुमान में भी नहीं था कि इस मनहूस की जीप काले शीशों वाली होगी। यूं भी आर्मी में जीपों के काले शीशे इससे पहले मेरी नज़र में नहीं गुजरे थे। एकदम मुझे अपना मिशन नाकाम होता दिखाई दिया। मेरे पास सोचने के लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं था। ब्रिगेडियर प्रकाश ने वापसी के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करना था, जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर था। ब्रिगेडियर प्रकाश से पहले वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन था। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करता और किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच भी जाता, तब भी खुद को छुपा कर दुश्मन के खिलाफ कोई प्रोग्राम सोचकर उस पर अमल पैरा नहीं हो सकता था। उस्ताद सादिक ने आखिरी नसीहत में कहा था कि एक तरबियत याफ्ता सिपाही का मिशन में नाकाम होने के बाद जिंदा वापस लौटना भी आधी कामयाबी होती है, मगर मैं अपने पहले मिशन में आधी कामयाबी पर इक्तफा नहीं कर सकता था। गाड़ियों का फासला हर गुजरते सेकंड कम होता जा रहा था। राइफल की बैरल पर साइलेंसर फिट था और फायर होते वक्त सिर्फ हल्की सी ठक की आवाज उठना थी, जो फायर की जगह से ज्यादा चंद गज दूर ही सुनी जा सकती थी। और फिर फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा। अगली जीप मेरे सामने से गुजरी। ब्रिगेडियर का टोयोटा इससे भी 20-25 गज पीछे था। मैं सेकंड भर में एक नतीजे पर पहुंचा और शिस्त लेते हुए ट्रैगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ बुलेट ने मजल को छोड़ा और उसी लम्हे सबसे आगे वाली जीप का पिछला टायर जोरदार धमाके से फट गया था। जीप हल्के से लहरा कर रुक गई। जीप में खड़े बावर्दी हथियार बरदार जवान छलांग लगाकर नीचे उतरे और चारों तरफ सरसरी नजर दौड़ाकर टायर की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। तीनों गाड़ियां रुक गई थी। सबसे आखिरी जीप में मौजूद हथियार बरदार जवानों ने भी जीप से उतरकर एतराफ में पोजीशन अख्तियार कर ली थी। इस दौरान मैंने कॉकिंग हैंडल को खींचकर राइफल इस अख्तियार से दोबारा कॉक कर ली थी कि खाली केस नीचे जमीन पर न गिरने पाए। पथरीली जमीन पर तांबे का केस अच्छी खासी आवाज पैदा करके दुश्मन को मुतवज्जे होने का बाइस बन सकता था। अगली जीप के ड्राइवर ने जीप की अकबी तरफ बंधा फालतू टायर खोलना शुरू कर दिया था। इसी वक्त मेरी दुआएं रंग लाईं और मेरी तरकीब को कामयाबी की झलक नजर आई।
ब्रिगेडियर प्रकाश ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करके सर बाहर निकाला। शायद वो अगली जीप वालों को कोई हिदायत देने वाला था या खाली एक नज़र ही बाहर देखना चाहता था। मुझे इसके इरादे से कोई गर्ज नहीं थी। शीशे के नीचे होते ही मेरी उंगली ने एक झटके से ट्रैगर की आज़ादाना हरकत को पूरा करते हुए मुकम्मल ट्रैगर दबा दिया। सर में लगने वाली गोली चीखने का मौका नहीं दिया करती। ताकतवर बुलेट ने इसका आधा सर उड़ा दिया था। ड्राइवर बुलंद आवाज में चीखा और जीप का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाकी सब भी उस तरफ मुतवज्जे हो गए थे। मैंने उनसे नजर हटाकर एक बार फिर राइफल कॉक की और आईडी की जगह पर शिस्त बांधकर तीसरी गोली फायर कर दी। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और उसी वक्त तमाम हथियार बरदारों ने अचानक फायर खोल दिया था। क्लाशनकोफों के फायर की तड़तड़ाहट से माहौल गूंज उठा था। चूंकि किसी को भी अभी तक मेरे छुपने की जगह के बारे में मालूम नहीं हुआ था, इसलिए वो चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे। जीप की अकबी नशिस्त खोलकर 2 ऑफिसर बाहर आए और तमाम को अंधाधुंध फायरिंग करने से मना कर दिया। यकीनन ब्रिगेडियर प्रकाश के बाद वही दोनों सीनियर थे। हमारे उस्ताद सूबेदार राव तसव्वुर अभी तक हयात हैं और अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत फरमाए, कहा करते थे कि किसी भी फौजी दस्ते को अगर सरासमा और हवास बाख्ता करना हो तो उनके कमांडर को ख़त्म कर दो। कमांडर की गैर मौजूदगी में वो दस्ता भेड़ों का रेवड़ बन जाएगा। अपने उस्ताद का सुनहरी कॉल उस वक्त मेरे दिमाग में गूंजा और मैंने टोयोटा जीप से बरामद होने वाले दोनों ऑफिसर्स में से एक का निशाना लेकर फायर दाग दिया। वो उछलकर नीचे गिरा। दूसरा एक लम्हे के लिए शॉक की कैफियत में आ गया था। मौका गनीमत जानते हुए मेरी राइफल ने मैगजीन में मौजूद आखिरी गोली उगली और दूसरा भी उसके करीब गिरकर बिन पानी की मछली की तरह फड़कने लगा।